ہو چکی ہیں، بس ایک غم ہے کہ جاتا نہیں، سمجھا کے دیکھا، بہلا کے دیکھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ آج کے اس موقع پر جبکہ ایک ہمارے شفیق استاد حمید اللہ بٹ صاحب اپنی تقریباً 35 سال کی نوکری کے بعد سبکدوش ہو رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ خوشی کا مقام ہے کہ ایک استاد اپنی بہترین سروس دے کر اس سروس سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس پرآشوب دور میں اگر ایک گورنمنٹ سرونٹ اس وقت بیدار ڈپارٹمنٹ سے نکل رہا ہے تو یہ اس کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی فخر کی بات۔ ایک بہترین استاد دراصل وہ ہوتا ہے جو سماج کو کچھ نہ کچھ بہتر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے جو بچے ہوتے ہیں ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے استاد کی ایک ذمہ داری رہتی ہے۔ ہی رنگ آلود ذہن تم نے نکھاری، آتی ہے خالص گھر سے جہاں تھا وہ تم۔ بہرحال وقت ایک عرضی حقیقت ہے اور تغیر و تبدل اس کا بنیادی اصول ہے۔ وقت ایک ایسا دریا ہے جو ہر حال میں بہتا رہتا ہے، یہ اپنی راہ میں کسی بھی رکاوٹ کو حائل ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، اعلیٰ ہو یا ادنا، غرض ہر متنفس وقت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ کس طرح سمجھایا آپ کے آداب، آپ کے اخلاق لوگ ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ آئیں گے یہاں پڑھانے کے لیے، لوگ جائیں گے، لیکن رہتا ہے یہی اگر آپ کچھ اچھا اس انسٹیٹیوشن کو دیں گے۔ یہاں جو ہمارے استاد، ہمارے ساتھی محترم عبدالحمید بٹ صاحب جو اس انسٹیٹیوشن میں ایک شجرہ سایہ کی طرح تھے، وہ اس گلشن کی پھولوں کو اپنی محنت سے اس طرح آبیاری کرتے تھے کہ آج بھی اس اپنے فرض منصبی سے جو آج کا دن تھا تو اس نے کہا ہمیں کچھ دن پہلے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا لیکن کلاس ورک پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کا دیکھ لیا اس کا جذبہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا لیکن اس میرے وجہ سے بچے سفر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ دیکھ لیجئے ہمارے سر کا جذبہ کیا ہے۔ As I already said, this is my one of my unique characters throughout my life. Whenever I go anywhere, out of routine, بیٹے آپ یہی ہو ابھی 10 منٹ کے لیے یہی، کیونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ out of routine, whenever I observe anything which is worth to remember, which is valuable and priceless, I remember it. And when I remember it, if it is valuable for my colleagues, I share it with them. If it is valuable to say to my family members, I share with them. And especially when it is worth to say to my students.
I say them बार बार. Satyam Shivam Sundaram. I have a little experience of working with Dawood Boy, his Vice Principal Sir, Mr. Rami साहब. तो इसको हम या मैं बदकिस्मती समझता हूँ, लेकिन पुराना तारुफ है इनके साथ, क्योंकि ये जो हमारा सर्विस कैरियर होता है, क्योंकि सब जो स्पीकर्स ने ऑलरेडी बोला कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. मैंने जिस तरह से हमीद साहब को देखा, हमीद साहब को जाना, हमीद साहब को पहचाना, तो उस लिहाज से मेरी निगाह में मैंने अपनी 25-26 साल के कैरियर में मैंने पहले ऐसे आदमी को देखा, मैंने पहले ऐसे बंदे को देखा, जिसकी वजह से ये मैं कहने के मजबूर हो रहा हूँ कि मैंने पहली बार एक टीचर को देखा. मैंने लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब, लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब, कहाँ कहाँ रखूं तेरी यादों का हिसाब, कहाँ कहाँ रखूं तेरी यादों का हिसाब. कौन चाहता अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर करता है. Today we are gathered here for a moment that is both filled with joy and touch of sadness. The retirement ceremony of our beloved senior lecturer, Mr. Hamidullah Bhatt Sahab, who has been an invaluable part of this institution for last 4 years. जो बीती है मेरे दिल पे सरे महफिल सुनाऊं क्या, जो ज़ब्त है अपने नाज़ा पे उनको मैं रुलाऊं क्या. जो बीती है मेरे दिल पे सरे महफिल सुनाऊं क्या, जो ज़ब्त है अपने नाज़ा पे उनको मैं रुलाऊं क्या. ये तस्वीर देखकर इतराते और फख्र करते हो क्यों, मेरे पास एक आईना है, क्या मैं तुझको दिखाऊं क्या. मेरे पास एक आईना है, मैं तुझको दिखाऊं क्या. एक माशूक जो शराफत का पैकर मुजस्सम था, एक माशूक जो शराफत का पैकर मुजस्सम था. मैं हो गया जैसे दीवाना, मैं तुमको बताऊं क्या. मैं हो गया जैसे दीवाना, मैं तुझको बताऊं क्या. ये कैसी रुत चली, ये कैसी रुत चली रिटायरमेंट, ये कैसी रुत चली घुटन बढ़ती ही जा रही है. ये कैसी रुत चली घुटन बढ़ती ही जा रही है. मैं इस खामोशी में अब कोई तूफान उठाऊं क्या. मैं इस खामोशी में अब कोई तूफान उठाऊं क्या. Good morning, venerable all present here. I, Gurjot Kaur from class 12, has been invited here to deliver a speech, and my speech is about cheers to retirement. The retirement of a teacher is a mentor occasion that signifies the culmination of a long and fulfilled career, dedication to shaping the minds of a future generation. After decades of tireless effort, unwavering commitment and unrelenting passion, teacher who retired has earned the right to bask in the glory of the accomplishment and enjoy the well-desired fruit of the labor. ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਖ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. Retirement, you get used to newspapers and books. Then my wife told in a fiery and loving manner, just close this newspaper and move to market. The Diwali is coming. The Diwali is coming. We are going to celebrate this Diwali in our new house, and nothing preparation we have done in that very regard. You should just, because it appears to me after retirement you have lost the sense of your mind. You have lost the balance of your mind. These were the words which I heard from our wife Radhika.
And with this, after hearing all these very words, he mentioned that it was a joke to me. It was just a quote from the video. I understand what type of celebration. Why celebrations? एक शख्स है जो मिस्ले शजर सायादार है. एक शख्स है जो मिस्ले शजर सायादार है. दुनिया की धूप छाँव में वो गमगुसार है. वो जिसके हरूफ हमको सिखाते रहे शऊर. वो जिसके हरूफ हमको सिखाते रहे शऊर. वो जिसके लफ्ज देते रहे फहम का गुरूर. अस्सलामु अलैकुम सफर लगे वालेकुम सलाम या पर लगे मत मुझ तो मैं कुल डाल लगे इछवार लगे ये दिल ये रंग क्या किसार लगे इछवार लगे इचे दफ्तर उसको अंग्रेज इचे दफ्तर उसको अंग्रेज इचे वंतम कस पूछ कुर्सित में इचे वंतम कस पूछ कुर्सित में इचे वंतम कस पूछ कुर्सित में कई चवित को मुगापर लगे इछवार लगे Sir, you did not just teach subjects, you taught values. You did not just deliver lessons, you deliver life. And you did not just build students, you build futures. Who can forget your timeless patience, your effortless teaching style, your sharp intellect and your ability to turn even the most complex topics into clear, beautiful terms. You had a way of seeing potential while others saw struggle. You inspired those who doubted themselves. जिनके किरदार से आती हो सदाकत की खुशबू, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की खुशबू, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं. मुझे आज यहाँ इस महफिल में ये एजाज मिला है कि सवारियाँ उमरी हमीदुल्लाह भट्ट साहब की मुझे यहाँ पे बयान करनी है. मोहतरम हमीदुल्लाह भट्ट साहब एक तजुर्बाकार मुदर्रिस, फराकिल मुअल्लिम और इल्म दोस्त शख्सियत माही जुलाई सन 1965 ईस्वी में पुलवामा जिले के एक खूबसूरत गांव पथन में पैदा हुए. आपने इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पथन से हासिल की. इसके बाद हाई स्कूल पिंगलाना में दरसुल तदरीस की खदमात अंजाम दिए. बाद में बहसत मास्टर तरक्की पाकर डोमपोरा राजपोरा में बतौर सरबरा अपनी कुर्सी संभाली. इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल हावल में आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने का मौका मिला. तरक्की पाकर बतौर लेक्चरर फाइज हुए. वैसे कि लेक्चरर आपने जिन इदारों में दर्स तदरीस की खिदमत अंजाम दिए वो इस तरह से है. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सापुरा और इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा से पिछले 4 साल से तैनात है. और इन 2 सालों के दरमियान मुझे मोहतरम हमीदुल्लाह साहब के कई औसाफ को करीबी से मुशाहिदा करने का मौका मिला है. उनकी अनथक मेहनत, भरपूर लगन, अज़्म इस्तिक़लाल, इनकिसार, ईमानदारी, सखावत इंतहाई काबिल सताइश है. उन्होंने हमेशा स्कूल के तालीमी और इंतजामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल अदा किया है. बल्कि मैं इनको अपना एक मोहसिन रहबर और अतालिक समझने में ही फख्र महसूस करता हूँ. मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे हमीदुल्लाह साहब की जैसी अजीम शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला है. Dedication. You have been a teacher. You have been a mentor, a guide,
and above all a true friend to all of us. Your teaching, your passion of teaching, your tireless efforts have inspired us to reach for a greatness. Your departure from this institute does not mean a goodbye of our hearts. أکِس اُستاد سٕنٛز اہمیت تہٕ افٲدیت تہٕ اِنسٲنی سماج حوال کیٛاہ رول چھُ أکِس اِنسان سُنٛد بلکہِ أکِس وۄستاد سُنٛد سُہ بیان فرماوان. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ اَتھ آیتہِ منٛز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم زن تمام اِنسانیت خٲطرٕ اکھ مکمل رہنما بنٲیِتھ سوزنہٕ آیہِ تِہنٛدِ حوالہٕ تِہُنٛد تعارُف پیش کران. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. میں سوچتا ہوں میں تقریر کروں یا اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے میری شان میں تعریفوں کے پل باندھ دیے. ظہور صاحب نے ایسی تقریر جھاڑی اتنی مبالغہ آمیزی کی کہ میں تو حیران ہوں. میں اس لائق ہوں کہ انہوں نے اتنی تعریفیں کر ڈالی. میرے چھوٹے بھائی عرفان صاحب نے تو اور بھی حد کر دی. لہذا میں کس کس کا شکریہ ادا کروں اور کس کس کو جواب دوں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کی تعریفوں کی جو بھوک ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے. میں نے ایک نظم پڑھی ہے مولانا الطاف حسین حالدی کی. وہ 12ویں جماعت کے جو میرے طلباء ہیں جن کو میں اردو پڑھاتا تھا، حالانکہ میں زوالوجی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، لیکن یہاں حالات کو مد نظر رکھ کر میں نے 12ویں جماعت کا جو اردو مضمون ہے اس کو پڑھانے کا بیڑا بھی اٹھایا تھا. تو مولانا حالی ایک نظم لکھتے ہیں، اس کا عنوان ہی ہے خود ستائی. یعنی جو انسان ہے اس کی سب سے لالچ جو ہے وہ ہے خود ستائی، اپنی تعریفیں سننا. چنانچہ وہ ایک جگہ تو شعر میں کہتے ہیں چپ چاپ سنتا ہے کوئی خوبیاں اپنی، چپ چاپ سنتا ہے کوئی خوبیاں اپنی، یعنی کہ یہ سب راست ہے اور بجا. یعنی انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ وہ چپ چاپ خاموش رہتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھی اس کی بیجا تعریفیں کرتی ہیں. چپی کا مطلب ہے تائید، یعنی وہ اپروو کرتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ سب راست ہے اور سب بجا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے وہ سیلف پریز چاہتا ہے اور اس کی یہ بھوک جو ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنی تعریفوں کے لائق نہیں ہوں. اصل چیز جو میں نے پچھلی مارننگ اسمبلی میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہی ہے وَأَنْ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اس کی آگے آیت یہ ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اے انسان جو تو کوشش کرتا ہے اس کو تو عنقریب دیکھے گا. یعنی موت آنے کی دیر ہے، قیامت کا بس ڈول بجنے والا ہے، سب کچھ کھل جائے گا اور آپ جلدی دیکھو گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا. ثُمَّ يُجْزَوْنَهُ جَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اس کے بعد ہم آپ کو پوری مزدوری دیں گے، اس میں ذرا پر بھی کٹوتی نہیں کریں گے. یعنی پورا آپ کو بدلہ دیا جائے گا. آپ نے نیکی کی ہو
तो उसका पूरा बदला मिलेगा। बदी की हो दुनिया में, विदा ले रहा हूँ इस दुआ के साथ कि जो आपकी ज़िंदगी है उसमें बाहर आ जाए, आप बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं, आप बड़े बड़े साइंसदान बन जाएं, आप बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, KS ऑफिसर, और आप बड़े बड़े सियासतदान भी बन जाएं, लेकिन आप बावसूल लोग बने, आप जानदार लोग बने, आप दूसरों का दुख और दर्द जो है उसको बांटने वाले बन जाएं, आपके अंदर बुलंद अखलाक और किरदार जो है उसका जौहर पैदा हो जाए, तब जाके आप दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं। मेरे लिए बड़ा ये मतलब दर्द व करब का ये मतलब लम्हा है जब मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ। मेरे पास ये बेटियां हैं जिनको मैं रोज बुलाता था, रोज पुकारता था, चाहे मैं क्लास से बाहर होता था या क्लास के अंदर। मैं कभी कभी अपने छोटे जो मुलाजमीन हैं उनको भी डांट डपट करता था। ये मेरा एक वतीरा था, कोई मतलब जैसे ये मेरे मुख्तार साहब थे अभी ये बोल रहे थे कि वो इज फादरली फॉर मी, तो ये मतलब बड़ा एजाज है, लेकिन कभी कभी मैं उनको भी डांट देता था। वजह यही है कि हम में डिसिप्लिन आ जाए, हम में नज़्म ज़ब्त जो है उसका जौहर, उसका अक्ल जो है वो हम में पैदा हो जाए। तो मैं इन बच्चों को हरगिज़ नहीं बोल सकता हूँ, इन बच्चों को जो मेरे क्लास के सामने होते थे, जिनको मैं क्लास में डांटता था, बाहर डांटता था, सिर्फ इस वजह से कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद ना हो जाए। असल चीज़ जो है हम तो इल्यूशंस में रहते हैं, हम तो ख्वाब ख्याल में रहते हैं, हम तो रियलिटी का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। मैं आज भी अगर अपने आप को धोखा दे दूंगा कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अमरी वाक़ा यह है मैं फिलवाक़ा रिटायर हो रहा हूँ। मुझे इस हकीकत का सामना करना ही करना है। हमारे गाँव में एक आदमी है, वो आज से 10 महीने पहले रिटायर हो गया, लेकिन वो शर्माता है ये कहने में कि मैं रिटायर हो गया। भाई आप हकीकत का सामना करो, आज नहीं तो कल ये हकीकत तो बहरहाल खो ही जाएगी। मैंने इन साथियों को बोला आप सब मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि जिस तरह निकाह की तशरीह क्या होती है वो नश्र इशाअत होती है, इसी तरह मेरी रिटायरमेंट की कम से कम ये नश्र इशाअत हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए, तो समाज को पता चल जाए कि इसने जिंदगी का एक मरहला जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो मैं जिंदगी का दूसरा मरहला जो है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये लाइफ साइकिल में बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने पिछली बार भी इन अपने साथियों को बताया, मैं उसी पर ये खात्मा करूँगा। मैंने कहा कि ये इंसान दुनिया को जवान तमिशे जन्न सूची रिटर्न टिकट आता, यानी वो दुनिया में आया उसको बहरहाल दुनिया से रुखसत होना। ये बड़े स्कॉलर हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान, उसकी बात है, मैं उसको कोट करूंगा। उसने मौत पर ये किताब लिखी है, बड़ी दिलचस्प किताब है उसने लिखी। उसमें वो ये बात कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ रिटर्न टिकट लेकर आता है, उसको बहरहाल यहाँ से निकलना है। इसी तरह जो डिपार्टमेंट में आ गया उसको रिटर्न टिकट साथ होती है। लिहाजा जब मैं 1990 ईस्वी में जिस डिपार्टमेंट में आ गया तो उसी वक्त मेरे साथ ये रिटर्न टिकट थी, और अब मैं रिटर्न टिकट जो है उसके साथ समेत में वापस घर जा रहा हूँ, आपकी दुआओं के साथ, आपकी शफकत के साथ और आपकी मोहब्बत के साथ। तो मैं सुबह बैठा था, आज मेरी क्लास भी नहीं थी, लिहाजा मैंने सोचा मैं कुछ लाइन्स जो हैं उनको यहाँ पर कलम बंद करूँ, आपको सुनाऊँ। तो उसमें मैंने कुछ बच्चों का नाम लिया है, मुझे माफ़ कीजिए मैं सब बच्चों का नाम नहीं दे सका, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बड़ा अलमिया ये है कि मुझे बच्चों के नाम याद नहीं रहते। ये मेरी बड़ी कमजोरी रही है कि मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन किसी बच्चे का मुझे जिंदगी में
नाम याद नहीं रहा, सिवाय उन बच्चों के जो हाईली टैलेंटेड बच्चे थे। आज भी मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ, कोई वहाँ मिलता है, बोलता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। भाई आप कब पढ़ते थे? फला वक्त आप उस हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे। बोले सर आपका काम क्या है? तो मेरी ये कमजोरी है कि मैं बच्चों के नाम जो है उनको याद नहीं रख पाता हूँ, लिहाजा मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आपसे माजरत करता हूँ कि मैंने सभी बच्चों के नाम इसमें नहीं लिए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके नाम इसमें नहीं आए हैं उनसे मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है। इसी तरह मेरे बहुत से असातिज़ा यहाँ पर है, कुछ का मैंने जिक्र किया है सुबह सुबह, आज सवेरे सवेरे, तो कुछ का नहीं आया होगा, लेकिन मैं उनको अपोलोजाइज करता हूँ कि वो इसको दिल पर ना ले, मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं सुबह जल्दी में था तो मैं इस गज़ल को पूरा नहीं कर सका। मुझ पर क्या गुजरती है तुमको छोड़कर, मुझ पर क्या गुजरती है तुमको छोड़कर, नहीं है लुत्फ़ उंजमन तुमको छोड़कर, नहीं है लुत्फ़ उंजमन तुमको छोड़कर। तुमने गोद में पाला सिखाया जिंदगी का हुनर, तुमने गोद में पाला सिखाया जिंदगी का हुनर। एक गटा छा रही है, ये गटा छा रही है तुमको छोड़कर। जिंदगी आगे रवा है, जिंदगी आगे रवा है, बहती गंगा है वरना, जिंदगी आगे रवा है, बहती गंगा है वरना, कैसे तन्हा होता मैं तुम्हें छोड़कर, कैसे तन्हा होता मैं तुमको छोड़कर। गुलशन में घोंसले, गुलशन में घोंसले, ये मेरा गुलशन है, गुलशन में घोंसले अबद के नहीं बनते, गुलशन में घोंसले अबद के नहीं बनते, संभलना खुद ही है तुमको छोड़कर। चिनार की ये ठंडी हवा, चिनार की ये ठंडी हवा और ऑक्सीजन ताजा, पुकार रहा है कुछ, पुकार रहा है कुछ तुमको छोड़कर। रियाज माजिद, रियाज माजिद, तौफीक जावेदो शहजाद, रियाज माजिद, तौफीक जावेदो शहजाद, चलना बड़ा मुश्किल है तुमको छोड़कर। उमर शौकत, उमर शौकत लतीफ़ो रऊफ़, उमर शौकत लतीफ़ो रऊफ़, खिलाई सफर है मेरा तुमको छोड़कर। शफी सलाम त्रिलोक फारूक अपना, शफी सलाम त्रिलोक फारूक अपना, इरफान की भी कमी है तुमको छोड़कर। गुलो गुलशन की आन बान सब्ज़ारो आफ्ताब, गुलो गुलशन की आन बान सब्ज़ारो आफ्ताब, लर्ज़ रहा हूँ मैं, लर्ज़ रहा हूँ मैं तुमको छोड़कर। तरीबा इंशा पाकीज़ा अक्सा व साइफा, उसका नाम मुझे कभी याद नहीं रहता था, साइफा, उसने बहुत मुझे इसकी तालीम कर दी, मेरा नाम याद रखो, अब मुझे रह गया वो, अब मुझे पता नहीं वो यहाँ है या नहीं है। तरीबा इंशा पाकीज़ा अक्सा व साइफा, सन्नाटा छा रहा है तुमको छोड़कर। स्कूल की शान लुबना मदीहा, स्कूल की शान लुबना मदीहा, उम्मीद बाकी है जी,
उम्मीद बाकी है भी तुमको छोड़कर, नहीं हो जाना किश्ती वैरान से कभी ना उम्मीद, नहीं हो जाना किश्ती वैरान से कभी ना उम्मीद, चराग बरदार रहना है, चराग बरदार रहना है तुमको छोड़कर। थैंक यू। तो इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैंने बोला कि मैं सभी के नाम, मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि नाम याद नहीं रख पाता हूँ, फिर भी इनकी इज्जत अफजाई के लिए मैंने अपने तौर से यहाँ पर कुछ मोमेंटो रखे हुए हैं। तो प्रिंसिपल साहब जो हैं उनकी तकरीर के बाद उनके नाम आएंगे, शाहजाद सर जो है वो उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो उनको मेरी तरफ से ये थोड़ा बहुत गिफ्ट है ताकि वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। Thank you, Hamid sir, for your inspirational speech. रब इस्लाह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा व फ़हमा। काबिल कदर स्टार ऑफ द डे मिस्टर हमीद साहब, असातिज़ा दीगर असातिज़ा किराम, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप पता ही है, हम सुबह से ही सुनते आ रहे हैं, आज की जो ये महफिल है, ये प्रोग्राम है, ये हमीद साहब आज हमसे रिटायर हो रहे हैं और उसी के एजाज़ में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो ये रिटायरमेंट है, मैं नहीं मेरा मन नहीं मानता कि हमीद साहब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है, हकीकत से कोई अपनी हकीकत जो है वो हकीकत होती है। इंसान जब दुनिया में आता है, जैसा कि हमीद साहब ने बताया, वो अपने साथ वो रिटर्न टिकट लेके आता है, उसको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है। इसी तरह जो भी कोई मुलाजिम डिपार्टमेंट में आता है, जब भी वो डिपार्टमेंट में आता है और उसके साथ उसकी भी वो रिटर्न टिकट साथ होती है, कब उसको रिटायर जाना हो तो कब उसको रिटायर पढ़ना पड़ता है। लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जो ये दिन खुद देखते हैं, खुशकिस्मत है वो लोग जो ये दिन खुद देखते हैं, अपनी आंखों से इस रिटायरमेंट का फंक्शन अपनी आंखों से देखते हैं। और हमने देखे बहुत सारे हमारे जो कुलीग्स है हमारे साथ, जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उन्होंने इस दिन को अपनी आंखों से नहीं देखा। और बहुत सारे वो हैं जो हालात की पेट चढ़ गए, जिनको नौकरी से बेदखल कर दिया गया, उन्होंने भी इस दिन को नहीं देखा। और इस हवाले से हमीद साहब जो है वो बड़े खुशकिस्मत है कि आज वो इस तकरीब को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हमने जो देखा हमीद साहब, जैसा कि आपको सबों ने बताया, सबसे ज़्यादा अगर किसी को जानता हमीद साहब गरीब में यहाँ से तो मैं उसको, क्योंकि मैं उसी को ज़्यादा जानता हूँ कि मैंने उसके साथ 2008 में हमने काम किया। 2000 से 2008 से आज तक मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। हमने जब से देखा, अब आपने सुना भी, आपने खुद अपनी आंखों से, कि ये कभी क्लास पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कभी और जो भी क्लास में जाता है लेकिन क्या करता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात जो मैंने उसमें देखी, ये असूलों पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हमीद साहब जो जानदार, ईमानदार, काबिल, और जैसा कि बहुत सारे आप सब ने उनकी तारीफी बिल्कुल के इन तारीफी की लायक है, बिल्कुल उससे ज़्यादा भी अगर कही जाए तो मुकाबला आ रही नहीं होगी। और जब मैं यहाँ आया, माशाअल्लाह हमीद साहब के साथ साथ जो भी दूसरे भी असातिज़ा साहिबान हैं या जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन्होंने भरपूर साथ दिया इस इंस्टीट्यूशन को अपलिफ्ट करने में, यहाँ की डेवलपमेंट को, यहाँ की एकेडमिक साइड को एट पार देने में हमीद साहब का और दीगर जो बाकी जो उनका अहम कलीदी रोल है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं आप लोगों का शुक्रिया, और मैं हमीद साहब का आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सुबह 11 बजे से बैठे, आप बड़े डिस्प्लिन से साथ, और मैं उनका भी, उन साथीज़ा साहिबान का भी, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमीद साहब का भी, हमीद साहब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि जो इसकी
जिंदगी है, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, जैसा कि बहुत सारों ने बताया कि टीचर कभी रिटायरमेंट नहीं हो, उसकी कभी रिटायरमेंट नहीं होती, वो रिटायर नहीं होती, बल्कि वो अपने पीछे एक कौम सदके जारी के तौर पर एक कौम पीछे छोड़ देती है। हमीद साहब जो कि है वो बहुत का माहिर काबिल और माहिर उस्ताद है, यह हम सबको पता है। कि मैं अब इस एक शार के साथ इस प्रोग्राम का हमीद साहब के नंबर कहता, मैं इस एक शार के आज उसको छोड़ रहा हूँ, आज उसको छोड़ रहा हूँ बड़े एतबार से, जिसको ढूंढने में मुझे पूरा ज़माना। I may invite Triloki here. He may hand over the bouquet and a festoon to Hamid sir on behalf of all non-teaching staff members. Mr. Triloki sir to hand over bouquet and festoon to Hamid sir. There is a garland or festoon that is to be presented to Hamid sir by Mr. Triloki. Now, I may invite Mr. Abdul Salam Wani Master and Mr. Samir Ji Bhatt sir. They may come forward and hand over bouquet and festoon to Mr. Hamidullah Bhatt sir. Mr. Abdul Salam Wani Master and Mr. Samir Ji Bhatt sir. Mr. Abdul Salam Wani to hand over bouquet to Mr. Hamidullah Bhatt sir and Mr. Samir Ji Bhatt sir to hand over festoon to Mr. Hamidullah Bhatt sir. I humbly request all staff members to be present here so that we can take group photographs. From the lecturer community, we have selected they have selected Mr. Farooq Ahmad Wani sir to hand over festoon and bouquet to Mr. Hamidullah Bhatt sir. I request all our lecturer community to be present here and take the photograph along Farooq sir. There are some personal gifts also that are to be handed to Mr. Hamid sir. I first of all request Farooq sir. He has his personal gift for Hamid sir. He may hand over that to Hamid sir. Mr. Farooq Ahmad Wani sir to hand over personal gift to Mr. Hamidullah Bhatt sir. All staff members are requested to be present here so that we can take group photographs. There is also a personal gift from our principal sir. I request our principal sir to hand over that memento to Mr. Hamidullah Bhatt sir. Remember, this is a personal gift from our principal sir to Hamidullah Bhatt sir. Now we have a Kashmiri shawl that is to be provided to Mr. Hamid sir from all staff members. That will be handed over to Mr. Hamid sir by our principal sir. I request all the staff members to coordinate in this first felicitation. All senior staff members to come forward and hand over that to Mr. Hamidullah Bhatt sir. We also have a memento from all staff members that will be handed over to Mr. Hamid sir by our staff secretary, Mr. Mukhtar sir. Big round of applause from students. We have a memento to be presented to Mr. Hamid sir from all staff members that will be handed over to Mr. Hamid sir by our staff secretary, Mr. Mukhtar sir. Yes, sir, this is a felicitation ceremony we are going to celebrate. This is the day, it's a very good day for us, for all of us, because we are celebrating this very day for the sake of our worthy Vice Principal Mr. Hamid sir. So we have so many mementos still pending that will be going on. And there is another memento, that is Mukhtar sir. Mukhtar sir, where is Mukhtar sir? He has some personal memento, he will also come forward to have it.
So, from the staff secretary, we are presenting a memento to Hamid sir. So, give a big hand for it. We have some students also. They are also presenting some sort of memento for Hamid sir. We have Lubna Rafiq. Lubna Rafiq will come forward with his memento to Mr. Hamid sir. So, please. From our support section, we have Jayal sir. Jayal sir will come forward with his memento to be presented to Mr. Hamid sir as a gift, as a token of wonder to our Hamid sir. So please give him a big hand again. Now we have Adfar. Adfar is here with a gift to Hamid sir. And Ronak. Oruna and Adfar. They have presented a joint gift for Hamid sir. Now we have three students, Muqaddas, Nikhat and Tabisha and Shaista. They will come and they will present a round of applause for them, please. We have Simran and Nikhat. They will come forward to hand over the gift to the best teacher, Mr. Hamid sir. Again we have Asha and Soha and Muntaha. They will come forward and they will hand over their personal gift to Hamid sir. Another student, Rubina, she will come forward and she will hand over the gift to Hamid sir. Another student, Saiba from 11th class, she wants to hand over the gift to Hamid sir. So give her a big hand also. We also have one of our staff members here, Mr. Amka. He will present a big round of applause for Mr. Amka. This concludes today's program. We are extremely thankful of students who have shown a lot of discipline throughout the day. We are thankful of our staff members who have provided their cooperation also.